AFCAT is a fairly easy paper as compared to CDS. Okay, that grammar and the vocab part that consists of 50 to 60%. Okay, grammar and vocabulary. Many students they can confuse with antonym and synonym. Yes, antonym synonyms they are there. There are very less. Okay, so don't, because there is no limit to the number of words you can mug up. So better यही रहेगा कि that आप जो grammar है, ठीक है, उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है, comprehension part and all. So out of 30, your aim should be to do at least 25 plus. Or if you have attended 3 wrong questions, you have done 1 right question, your score is still 0. Okay, ठीक है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको उतना ज़्यादा उसका फल एग्जाम के अंदर मिलेगा. जय हिंद एस्पिरेंट्स, I Lieutenant Kavish Gander, I welcome you all to Centurion Defense Academy. Today topic is interesting. We know that AFCAT is just around the corner and hardly few days left, and right now so everyone will be in either panicky mode or going on full throttle. Nevertheless, those who are still a little bit struggling and still a little bit of confusion is there, so I'm here to discuss what you can do in next 21 days or so. Okay, so because AFCAT is a fairly easy paper as compared to CDS. Okay, yet many students they fail or they score very less marks to an extent that they are not able to make it to the merit even after recommendation. Okay, so I'm here to clear all those doubts and to give you a general idea that what you can do. Okay, so let's begin. Now, firstly, in the last 4 AFCATs, the trend which has been noticed is that the general awareness and English, okay, they are consisting a huge chunk of your AFCAT. Those who are not aware, I'll just remind you that AFCAT has 100 questions. Each question has 3 marks, okay, and negative marking is there in case you get a question wrong, then it is a -1. So total 300 marks. The cutoff is hovering anything between 130 to 150. It's between that, okay. But even if you're just clearing the exam and if you do get recommended, the most likely chances are that you will get merit out. So we don't want that. So safe score is generally considered that anything above 170, 180, you stand a chance in the merit. If you can score above 200 and you score a recommendation, then most likely you will be in like the top 5. You are going to the academy in that case. Okay. So for the GK, it is noticed that 30 to 40% questions, they are current affairs of the GK part. Okay. And that too of last 6 to 12 months. This means what? That in case your exam is on 31st January, you need to be thorough at least current affairs which are from July or June 2025. That has to be the minimum threshold. If you can go 3-4 months behind that and you can prep for that, far too good. Okay. Difficulty is moderate. Okay. Now in total, the GK questions are 25. Okay. Now general awareness is a vast topic. Okay, you cannot do all the questions. Okay, like I said, negative marking is there. So your target should be to do at least 15 to 18 questions. Like you do 15 to 18 questions, get all of them right. Okay, don't do any guesswork. Then you will start, you will already have crossed that 25% mark. Okay, next is your English. English is 30 questions. Seeing that grammar and the vocab part that consists of 50 to 60%. Okay, grammar and vocabulary. Many students they can confuse with antonym and synonym. Yes, antonym synonyms they are there. There are very less. Okay, so don't, because there is no limit to the number of words you can mug up. So better यही रहेगा कि that आप जो grammar है, ठीक है, उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है, comprehension part and all. So out of 30, your aim should be to do at least 25 plus. Okay, because see, no one is absolutely perfect. Okay, there will be at least per section 2 to 3 questions जो आपको पता ही नहीं होंगे. So no point in attempting those, because अगर वो गलत हो गया तो automatically, or if you have attempted 3 wrong questions, you have done 1 right question, your score is still 0. ठीक है. Next, the numerical ability or maths.
So now primarily seen that it is a lot of questions are coming from arithmetic. Okay, arithmetic is your speed, time and distance, ratio and proportion, profit and loss. Okay, your compound interest, simple interest, all these kind of questions. They are fairly easy. Okay, the only thing is that you need to understand the concept. अगर एक बार अगर फॉर एग्जाम्पल स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस यू हैव सीन पी दैट ओके इट इज़ नॉट जस्ट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, वो एक फॉर्मूला है, पर उसमें कंसेप्ट क्या है, उसकी लैंग्वेज क्वेश्चन की क्या बोल रही है, एंड इट्स अ वेरी लिमिटेड, ठीक है, दिस यू कैन जस्ट very easily practice and get through in maybe in a week. Okay, and 18 questions, 14 to 16 you should attempt. Ideally I feel that you should score all 18. ये आपके बैठे बैठे sitting duck marks. Okay, तो इन केस यू डू मेस अप इन जीके क्वेश्चन के आपने एक दो गलत कर दिए, आपने योर इंग्लिश के अंदर आपने 2-3 गलत कर दिए, सो मैथ्स बिकम योर लाइफ बोट विच टेक्स योर स्कोर अहेड. Next is your reasoning and military aptitude. 27 questions. Again, series, odd one out, visual patterns, all these are 30% of that. ठीक है, total questions 27 आते हैं. रीजनिंग के अंदर 20 to 22 questions तो आपके मिनिमम अटेम्प्ट होने चाहिए. Okay, and when I say attempt, it means that in case you have attended 22 questions, then at least 20 to 21 should be right. Then only your dream score of getting 200 plus will be achieved. ठीक है, in the worst case अगर थोड़ी सी और गलतियां हो जाती हैं तो your score might fall down to maybe 180. So like I said in the earlier of the video that in case you do score that much amount of marks, you still stand a very good chance in the merit. ठीक है, अगर आप 140 के आसपास 150 के आसपास फ्लक्चुएट करोगे, you are scoring 3-4 marks just above the written cutoff, I'm sorry, then you will be bearer of a bad news that your name is not in the final merit list which comes out as per the branches. Okay, so now 180 to 200 basically होगा कैसे? पहला, आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उसका एक्यूरेसी रेट शुड बी एटलीस्ट 60 to 70%. ठीक है, अगर आपने 100 क्वेश्चन किए हैं तो उसमें से आपके कम से कम तो 70 तो आपके करेक्ट होने चाहिए. ठीक है, बट लाइक इट सेड भी अगर 100 के 100 करोगे तो -30 तो आपका वहीं से कट गया, तो 210 - 30, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यू विल कम डाउन टू 180. ओके, बट अगर आप कर रहे हो तो उसमें कम से कम आपके 65 to 75 करेक्ट होने चाहिए. ठीक है, विदाउट दिस यू वोंट लाइक दैट, यू नो, क्लियर कर लोगे आप, सेलिब्रेट कर लोगे, बट मेरिट का देन इशू रहेगा. यू गाइज आर फेयरली लकी इनफ दैट एज ऑफ नाउ दैट वॉट एवर द नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा है, इंक्लूडिंग द वेपन सिस्टम ब्रांच हैज़ बीन इंक्लूडेड, एंड फॉर द टेकीज अ पीसी ऑप्शन इज नाउ ऑल्सो कम इन दिस AFCAT. My time the AFCAT merit list used to be over in one page. Like लॉजिस्टिक्स की सिर्फ एक सीट है, पीसी एंड शॉर्ट सर्विस की 2 हैं, एडम की 1 है, अकाउंट्स है ही नहीं, एजुकेशन है ही नहीं. ओके, टेक्निकल की गिन चुन के मे बी 15 सीट्स, फ्लाइंग ब्रांच की गिन चुन के 6 से 7 सीट. Okay, because something had happened back in 2016 and 15, so because of that the vacancy were reduced, but they got normalized after 2019. So you guys are fairly lucky. Okay, नाउ प्लीज रिमेंबर दैट जो आपको इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं, ठीक है, 80% क्वेश्चन उन टॉपिक्स में से आते हैं. ठीक है, तो इट इज लाइक ए चीट कोड. अगर अभी भी यू आर स्ट्रगलिंग, ठीक है, प्लीज ये जो आपको टॉपिक्स बताए इनको तो आप थॉरली करके जाओ. ओके, एंड अबव ऑल यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस भी भैया ये टॉपिक मेरे को आता है, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूंगा या कर लूंगी. ओके, सट्टे वहां नहीं मारने हैं. Any competitive exam in the India which you do, okay, whether it is your AFCAT, whether CDS, your CGL, your NDA, maximum students flunk because with that वो सट्टे मारने चालू कर देते हैं, and it finally gets backfired because आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाता है. आप 2 सही करते हो और 8 गलत कर देते हो तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली नेगेटिव में जा रहा है. ओके, नाउ फॉर आज से, ओके, फॉर द नेक्स्ट 10 days, ठीक है, स्टार्ट बिल्डिंग एंड रिवाइजिंग द कंसेप्ट्स. लाइक आई एम सेइंग अगेन,
कंसेप्ट समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने एक बार कंसेप्ट को समझ लिया, ठीक है, देन किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाए, स्पेशली इन योर मैथ्स एंड रीजनिंग विच कंसिस्ट गुड 40 to 50% ऑफ द चंक, यू आपको किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप इजीली उस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। पर अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है, आपने 6-7 तरह के क्वेश्चन आपने रट्टा मार लिए, वहाँ पे हल्की सी लैंग्वेज चेंज होगी एंड योर माइंड विल बी इन रोटेशंस, ठीक है। डे 11 से लेके डे 18 तक, ठीक है, प्रैक्टिस सेक्शन वाइज टेस्ट। ओके, व्हेन आई से सेक्शन वाइज टेस्ट, दैट इज योर इंग्लिश का सेक्शन, इंग्लिश के ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मैथ्स के ही करने हैं, रीजनिंग के ही करने हैं, ओके, योर जीके के ही करने हैं। दैट वे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोस टेस्ट। ओके, पर डे 19 to 21 full mock test. Ladies and gentlemen, the AFCAT exam is of 2 hours. Okay. आप उनको लगा सर मैं तो दिन का एक मॉक कर लूंगा बहुत होगा, नो आई एम सॉरी, CDS का दिन का एक मॉक चलता है, नॉट फॉर AFCAT, बिकॉज AFCAT आपका 2 घंटे का है। अगर आप सुबह 8 बजे भी अगर आप चालू करते हो, ठीक है, आप दिन के कम से कम 4 से 5 मॉक टेस्ट इजीली कर सकते हो बाय द टाइम यू गो टू बेड, ओके, विथ एडिक्वेट रेस्ट इन बिटवीन योर मॉक्स। ओके, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको उतना ज़्यादा उसका फल एग्जाम के अंदर मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो भी 1-2 मॉक करके चला जाऊंगा, हो सकता है अगर किस्मत अच्छी है तो, ओके, बट आपको जब वाट आता है तो वाट में कहता है ना दैट हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, सो दिस इज द हार्ड वर्क विच इज द की टू सक्सेस यू नीड टू डू। ओके, स्लीप वेल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप 6 to 7 आवर्स, 8 घंटे की नींद की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 6 घंटे इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा इन केस यू आर लिटिल मोर टायर्ड, थोड़ा सर्दियों का भी टाइम चल रहा है तो मे बी 7 आवर्स, ठीक है, बट नॉट मोर देन दैट। ओके, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। देन उसके बाद आप खाली आप सुस्ती मार रहे हो और उसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। 7 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस बिकॉज when your body and mind is rested you are able to focus it more thoroughly, ठीक है, आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा, आपका फोकस लेवल हाई रहेगा। इफ योर माइंड इज ऑलरेडी इन एन एग्जॉस्टेड स्टेट, आपकी बॉडी थकी हुई है, ठीक है, यू गाइज आर नो पैरा कमांडोज दैट इवन इन फटीग स्टेट यू विल बी एबल टू परफॉर्म, नो, ठीक है। इट इज रिटन एग्जाम इज अ कॉम्पिटिशन, every damn mark matters, not just 1 mark but every 0.25 से आपकी मेरिट ऊपर नीचे हो सकती है। The 0.25 can become the difference between you wearing the blues or again giving the next AFCAT attempt, so keep this in mind, ठीक है। 70% टाइम आपका मैक्सिमम मार्क्स जनरल अवेयरनेस, ठीक है, करंट अफेयर्स जिसने आपको बोला भी एटलीस्ट जून जुलाई ऑनवर्ड्स ऑफ 2025, ठीक है। जितनी भी डिफेंस एक्सरसाइज हुई हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, हमने जॉइंट एक्सरसाइजेस की हैं, ठीक है। ऑल द लेटेस्ट वेपनरी, जो भी उन करंट अफेयर्स के अंदर वेपनरी आपको सुनाई दे रही है, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एनी टेस्टिंग, एनी प्रोक्योरमेंट विच हैव डन फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, प्लीज रिवाइज इट। ओके, स्पेस मिशंस, ओके, we know that we had Group Captain Shukla going into space, ठीक है। So कहाँ से गए, कौन सा स्पेस व्हीकल के अंदर गए, ठीक है। अबाउट द मैन्ड स्पेस मिशन, थोड़ा सा हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट भी इसरो का, ओके, प्लीज रिवाइज दैट। ओके, देन स्टैटिक जीके, यस, हिस्ट्री पॉलिटी सेलेक्टिव है बिकॉज ये ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री और पॉलिटी टोटल मिला के, दैट योर मॉडर्न हिस्ट्री, योर मिडीवियल हिस्ट्री। जनरली इट इज सीन दैट इन AFCAT यू प्राइमरली यू गेट द हिस्ट्री का आपको मिडीवियल या मॉडर्न में से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, स्पेशली द गांधीयन एरा, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से करके जाओ। देन इंग्लिश, योर वोकैबुलरी, ठीक है, 50 वर्ड्स अ डे। अब इसका व्हाट आई कैन सजेस्ट इज दैट द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, आप उसको सर्च करो, ठीक है, दैट पिछले 3-4 महीने के अंदर हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर कौन से ऐसे दैट यू नो थोड़े हाई लेवल वर्ड्स आए हैं, उन वर्ड्स की स्पेलिंग्स देखो, लिखो मल्टीपल टाइम, ठीक है, एक वर्ड को कम से कम 5-6 बार लिखो ताकि उसकी स्पेलिंग आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाए। देन उसके बाद उसका डिक्शनरी के अंदर मीनिंग देखो, दैट उसका मीनिंग क्या है, मीनिंग समझो। देन उसके सिनोनिम्स क्या है, उसके एंटोनिम्स क्या है। दैट्स हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर योर इंग्लिश वोकैबुलरी सेक्शन,
इट इज़ नॉट भी आपके सामने एक वर्ड्स की लिस्ट आ गई और आपने उसको रट्टू तोता बन के रट्टा मार लिया, नहीं। आप रट्टा मारोगे, उसमें से एक वर्ड भूलोगे, आपकी वो पूरी पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी, आपको याद ही नहीं रहेगा। ओके, सो यू नीड टू टैटू दीज वर्ड्स इन योर माइंड एंड द बेस्ट वे टू डू इट इज बाय राइटिंग। ओके, स्कूल डेज के अंदर आपको टीचर आपकी इंग्लिश के अंदर डिक्टेशन देती थी दैट अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आपको कम से कम वो 15 से 20 बार लिखना होता था। तो सेम वो जो बेसिक फंडामेंटल है वो आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड रीडिंग फॉर स्पीड। रीडिंग फॉर स्पीड कम्स अंडर योर कॉम्प्रिहेंशन, वो आपके बैठे बिठाए नंबर हैं। ओके, येट अ लॉट ऑफ पीपल दे टेक इट वेरी इजली, यार कॉम्प्रिहेंशन है वो तो कर ही लेंगे, नहीं। हर मॉक के अंदर कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर खासा ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है स्पीड एंड प्रैक्टिस प्लान, एज आई ऑलरेडी मेंशन, ठीक है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर्मूलाज यस, बट बिफोर द फॉर्मूला और एनीथिंग प्लीज इनका कंसेप्ट समझो, पी दैट जो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है उसको, क्वेश्चन को तोड़ना सीखो, पी दैट हर लाइन का क्या मतलब है, उससे हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन है और हमको क्या निकालना है, कैसे निकालना है। ओके, दैट वे यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इन अ फार बेटर टाइम, ठीक है। नेक्स्ट अबाउट द रीजनिंग, सीरीज, ऑड वन आउट, कोडिंग, डिकोडिंग, स्पैटियल विजुअल रीजनिंग, ठीक है। मिलिट्री एप्टीट्यूड, डायरेक्ट सेंस, फिगर रोटेशन, मिरर इमेजेस। रीजनिंग थोड़ा सा एफकेट का हाई लेवल पे आता है। व्हाट यू कैन डू इज बी दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रीजनिंग, ओके, एंड आल्सो मैथ्स, आप एसएससी सीजीएल लेवल के जो क्वेश्चंस है आप उनको अच्छे से करके जाओ, ठीक है, बिकॉज दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ओके, बिकॉज उसमें ये सेम टॉपिक्स हैं एंड ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस ही आते हैं, लाइक 98% ऑफ द टाइम एसएससी सीजीएल वाले क्वेश्चंस उठ के ही आपके एफकेट में आते हैं। तो आप वो करो, you will have a good shot. Okay, one full mock daily, that is before the final 3 days. Okay, एक मॉक, लाइक मैंने बोला आपको दिन के कम से कम 3 से 4 मॉक, मिनिमम 3, अगर और ज़्यादा अगर आप 5 से 6 कर सकते तो नथिंग लाइक इट, ठीक है। 6 घंटे की स्लीप, 2 घंटे का खाना पीना और 10 घंटे के मॉक टेस्ट। ओके, इट इज सिंपली दैट हाउ बैड यू वांट इट। अगर इफ़ यू हैव दैट फायर इनसाइड भी दैट नहीं यार मेरे को इसी अटेम्प्ट के अंदर क्लियर करना है, मेरे को अच्छे नंबर लाने हैं और इसी गो के अंदर बाय दिसंबर आई नीड टू बी इन दी एयरफोर्स अकेडमी एट डुंडिगल, ठीक है। इफ़ यू हैव दैट रियल पैशन यू विल बी एबल टू डू दोस 4 to 5 मॉक्स डेली। इफ़ यू आर हैव लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन है या आपको सुस्ती चढ़ जाती है एंड ऑल दैट, then अगर रिटर्न आप निकाल भी लोगे then I can assure you at SSB level this problems will be detected in you and you will be conference out, ठीक है। then no one is to be blamed. Your SSB prep starts during your written stage itself. ठीक है, apart from sleep please 30 minutes of exercise, and when I say exercise I don't mean bloody yoga, ठीक है। योगा इज व्हेन यू, जब तुम अपना एयर कॉमोडोर या टाइम स्केल ग्रुप कैप्टन वगैरह बन के जब रिटायर हो जाओगे ना एयरफोर्स है, उसके बाद करना। ओके, यू नीड टू हैव द एबिलिटी टू डू 100 पुशअप्स, यू नीड टू हैव द एबिलिटी टू डू एटलीस्ट 15 पुलअप्स, ठीक है, एंड शुड हैव द एबिलिटी टू रन एटलीस्ट 10 किलोमीटर्स इन अ सिंगल गो। सो वो धीरे धीरे बिल्डअप होता है, इट टेक्स time. So while you are preparing for your SSB, while you are preparing for your written exams, you also need to be prepared for the rigors of the academy, because what will happen is that agar aap physically fit nahi ho, you will go to the academy, you will get injured, okay, and worst case scenario, you will be thrown out of the academy because you are an LMC, that is your lower medical category. So that should not happen. So please exercise daily. Not just it will help you in your overall fitness, but also remember कि जब हम कोई गेम खेल के आते हैं, that is a team game, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, या फिर हम कोई हाई लेवल हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करके आते हैं ना, तो इट रिफ्रेशेज आवर माइंड, इट इज़ लाइक अ डिटॉक्स फॉर द बॉडी व्हेन यू स्वेट इट आउट, ठीक है। आपको एकदम कूल काम एंड आपको एक अलग लेवल की एनर्जी देगा। That once you have come from the exercise, you have taken your bath and everything, had a small meal, okay, sit back on that study table and start studying.
you will notice that your focus is far higher, you are at a different josh level altogether. Okay, and plus you get a sense of achievement भी, yes आज मैंने कुछ उखाड़ा है. Okay, when you are doing your mocks from the itself, ठीक है, keep on seeing that वीक 1 के अंदर एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू स्कोर 140 to 150. दैट इज जो बेसिक कट ऑफ आपका जहां पे हवर करता रहता है. ठीक है, वीक 2 वीक 3 तक आपका 180 प्लस, आइडियली 200 तक आपका स्कोर टच हो जाना चाहिए. बिकॉज अगर मॉक में अगर आप 200 नंबर ला रहे हो तो एक्चुअल टेस्ट में देन आपके 170 180 के आसपास आएंगे. दैट इज पीरियड. ठीक है, इट इज नॉट भी अगर आप मॉक में अगर आप 210 ला रहे हो तो एक्चुअल टेस्ट में भी आपके 205 210 आएंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता. It is always that what you have trained for, you will get at least 10% less than that. ठीक है, so that's the reason at mock aim to score 200 210 plus. So in your real attempt you will score 180 190 or maybe a 200 mark. All right, so it is all about your planned execution. ठीक है, stay cool, stay calm. वहाँ पे आराम से, बहुत टाइम है. ठीक है, 100 क्वेश्चंस 2 hours 120 मिनट, सो यू आर गेटिंग 1 मिनट मोर देन दैट. और इंग्लिश तो ऐसा सब्जेक्ट है भी दैट, एंड जी के ऐसा सब्जेक्ट है भी आप 10-10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन उड़ा सकते हो. तो बाकी आपका रिमेनिंग टाइम जो है वो मैथ्स और रीजनिंग की तरफ डेडिकेट करना. ठीक है, एंड कूल काम ठंडे दिमाग से प्रैक्टिस आपने कर रखी है. हैव दैट फेथ इन योरसेल्फ एंड अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन एंड रॉक दैट एग्जाम. सो आई विल सी यू लेटर. जय हिंद. अगर देश की वर्दी पहनना है आपका भी सपना, तो आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है आपके साथ, जो है डिफेंस एग्जाम्स की सफलता में एक भरोसेमंद नाम. यहां आपको मिलता है बेस्ट मेंटर्स का मार्गदर्शन, रेगुलर क्लासेस, एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल, एक्सपीरियंस्ड एसएसबी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग, लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड, वीकली मॉक टेस्ट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस जैसी कई सुविधाएं, ताकि आपकी डिफेंस प्रिपरेशन हो पूरी A to Z. तो फिर देर किस बात की है? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वेलकम करती है हर उस एस्पिरेंट को जिसने देखा है सपना देश सेवा और रक्षा का. अभी एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में और टॉप AIRS की तरह ही दीजिए अपनी मेहनत को एक विनिंग बूस्ट.